रानीगंज के रतिबाटी इलाके में संतोष वाद्यकर नामक एक व्यक्ति की पीट कर हत्या का मामला सामने आ रहा है। इस बारे में उनकी पत्नी अनीता ने बताया कि कल नरेश पासी और पिंकी पासी ने उनके पति को उनकी आंखों के सामने मारा। उन्होंने कहा कि बड़ा पत्थर उठाकर वह दोनों ने उनके पति पर जानलेवा हमला किया था। यहां तक कि उनको और उनके पति की पिटाई करने के बाद वह दोनों उनकी बेटी को मारने के लिए भी दौड़े थे। उनकी बेटी किसी तरह घर के एक कोने में छिपकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद उनके पति थोड़ी देर के लिए बाहर गए। जब वह लौटे तो उन्होंने कहा कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए वह डॉक्टर नहीं दिखा पाई। लेकिन पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए वह अपनी बेटी के साथ बाहर निकली। जब वापस आए तो देखा कि उनके घर से नरेश और पिंकी निकल रहे हैं। जब वह अपने घर पर घुसी तो देखा कि उनके पति मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। अनीता ने साफ साफ आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या नरेश और पिंकी ने की है और वह चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस तरह से नरेश और पिंकी ने उनके पति की हत्या की है, वह भी अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताए। नरेश पासी पिंकी पासी আমার স্বামীকে ধরে ওখানে মারলো বাটটাতে, এই বড় বড় ইট পাথর দিয়ে, এমনকি এত বড় টিট তুলেছিল। বলছে এই ইটটা দিয়ে খেপার মুখটা ছেঁচিয়ে দেবো, বুঝতে পারলে? আমার সামনে, ঠিক আছে? আমার ছেলে ছিল না, শুধু আমার মেয়ে আর আমি ছিল। আমার স্বামীকে মারার পর অনেকক্ষণ ধরে আমাকেও মারলো, আমার স্বামীকে মারলো। তারপরে আমার মেয়েটাকে ও স্বামী নরেশ পাশি আমার মেয়েটাকে তেড়ে নিয়ে গেছিল, দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে গেছিল। আমার মেয়ে একটা ঘরের লোকের ঘরে ঢুকে দিয়েছে, বলছে তোরা আমার ওই মেয়েটাকে বার কর ঘর থেকে, ওকে মারবো আমরা। আমার মেয়ে ঘরে থেকে বেরোয়নি, ওদের ঘরে লুকিয়েছিল। যদি বিশ্বাস না হয় এখনো তারা এখানে আছে। কেন আপনি মারপিট করেছেন? ওদের মারধর করার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তোরা গরিব, তোরা পড়াশোনা শিখতে পারিস না, আমাদের টাকা পয়সা আছে, আমি লোকের বাড়িতে কাজ করে আমার ছেলে মেয়ে আমি খাওয়াই, এই যে আমার ভাঙা ঘর আছে, কি বলে ভাঙা ঘরে এত মেয়েকে শিক্ষিত করবি, আমাদের এত টাকা পয়সা, আমি কারো কাছে 5 পয়সা ধার করি না, কারো কাছে ভিক মাগার মতন দুটো লঙ্কা একটু পেঁয়াজ আমি চাইতে যাই না, সেইটাই ওর অহংকার বলবে। বলে মেয়েটা এত অহংকার, কারো কাছে কিছু চাই না। আমি বলি আমি রোজগার করে যতটুকু আমার হবে ততটুকুই খাবো, কারো কাছে আমি চেয়ে নিয়ে না, চাইলে পরে ওইটা পরে আমাকে তুলনা মারে, আমরা দিয়েছি বলে খেতে পেয়েছি, সেই হিসাবে আমি কারো কাছ থেকে নিই। আমার স্বামীও চাইতো না, আমিও চাইতো। তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নন্দবংশী চেতনা মঞ্চ আসানসোলের সুকান্ত ময়দান থেকে মুগরাশোল পর্যন্ত একটি তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করে। এই তিরঙ্গা যাত্রায় সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তিরঙ্গা যাত্রায় অংশগ্রহণকারী মহিলারা জানান যে তাদের সংগঠনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এই তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করা হয়েছে। তারা বলেন যে তাদের সমাজে এখনো উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের 29 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কাউন্সিলর গৌরব গুপ্তের নেতৃত্বে আজ 29 নম্বর ওয়ার্ডে বাদুয়া বাজারে কুশওয়াহা ভবনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি এবং 29 নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত বিজেপি কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এখানে শিশুদের পড়াশোনার সামগ্রী দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে উভয় বিধায়ক বলেন যে আজ যেভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়, কারণ শিক্ষায় জীবন গড়ে এবং আজ এখানে যেভাবে শিশুদের পড়াশোনা সামগ্রী দেওয়া হয়েছে তা শিশুদের শিক্ষিত হতে এবং শিক্ষার আলো ছড়াতে সাহায্য করবে। उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जी मंच पे और इस इलाके के जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, इस वार्ड का पार्षद गौरव और उसका पूरा टीम, तो मंच के सामने जो बच्चे हैं जिनको आज डिक्शनरी या पढ़ाई की और सामग्री दी जाएगी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन के असली पहलू को, राजनीतिक पहलू को कृष्णेंदु जी ने आपके सामने बताया, लेकिन उसके साथ साथ उनका जीवन का एक और भी पहलू था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बहुत कम उम्र में बने थे, और उसके बाद मातृभाषा में हायर सेकेंडरी में पढ़ाई हो, इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी ने निभाई थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। देखिए, इस वार्ड के लोग बराबर से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिस दर्शन में विश्वास करते हैं उन्हें समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन
ये समर्थन कुछ इलाके तक सीमित रहता था, इसलिए पूरे आसनसोल में जो खुशी, जो आजादी हमें अनुभव करनी चाहिए वो नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार चुनाव में इस वार्ड के साथ साथ और भी बहुत से इलाके में लोगों ने ये महसूस किया कि अब श्यामा प्रसाद की मुखर्जी के दर्शन में विश्वास करने वाले लोगों को खुली हवा में जीतने का अधिकार मिलना चाहिए। और आपने कृष्णेंदु मुखर्जी जी को भारी मतों से विजयी बनाया और उसका लाभ आपको मिल रहा है कि जो बोलने का अधिकार छीन लिया गया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मिला, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा डेवलपमेंट, जब पैसा आएगा डेवलपमेंट होगा, वो तो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जिस दिन से रिजल्ट निकला है चुनाव का 4 तारीख को, उस दिन से ही आपको सबसे पहला जो चीज मिला है वो है बोलने का अधिकार मिल गया है। डर नहीं है किसी का। पहले आतंक का माहौल था पूरे रेल पार में आतंक का माहौल था। आपका 5 तल्ला बिल्डिंग था, कोई बात नहीं, आप बना लिए थे, मेहनत करके अपने पैसा से बनाए थे, लेकिन आपके मन में डर था कि कहीं नन्हे मिस्टर का नजर उधर पड़ गया तो कब वो बिल्डिंग नन्हे मिस्टर का हो जाएगा। आप मेहनत करके आसनसोल बाजार में अपना संपत्ति बनाए, अपना दुकान बनाए, लेकिन कहीं नन्हे मिस्टर का बुरा नजर उधर पड़ गया तो कब आपको वो बिल्डिंग उल्टा हो जाएगा आपको पता नहीं। लेकिन आज वो डर समाप्त हो चुका है, आज वो डर समाप्त हो चुका है और आज खुली हवा में आप सांस ले पा रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, जो लोग इलीगल एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं उनकी बात कहता हूँ। और एक और बात कृष्णेंदु मुखर्जी जी है, आपके विधायक है, मैंने उनसे कहा, हम दोनों भाई ने आपस में मिलकर बात किया है कि रेल पार्क को, आसनसोल को ये जो जिहादी है नन्हे मिस्टर, इनकी चंगुल से मुक्ति दिलाना हमारा काम है। ये काम हम लोग 1 घंटे में कर सकते हैं। 1 घंटे में अपने बच्चों को फ्रीडम दे दिया जाए तो नन्हे मिस्टर कहाँ नजर आएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन जो कुछ भी हम करना चाहते हैं कानून के दायरे में करना चाहते हैं, सिस्टम में करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन विश्वास कीजिए आने वाले 1-2 महीने में आपको ये नजर आएगा कि केवल रेल पार्क में उनका ही राज रहेगा जो समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, जो किसी की संपत्ति पर बुरा नजर रखते हैं, उनका भला नहीं होने वाला है, उनका बोलबाला अब नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में अच्छे लोगों को प्रमोट किया जाएगा। आज यहाँ पर जो लोग भी मंच में हैं, सम्मानित लोग हैं जो समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, और जिन बच्चों को बुलाया गया है उन्हें भी पुस्तक दी जा रही है, डिक्शनरी दिया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए वो पढ़ाई लिखाई करके आने वाले दिनों में आगे बढ़े। आसनसोल रेल पार्क को नशा मुक्त करना है। आसनसोल रेल पार्क में अब जो ड्रग्स बेचेगा वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा, कोई नहीं बचाएगा। ये लाभ हुआ है आपको कृष्णेंदु मुखर्जी जी को वोट देने से। डेवलपमेंट तो होगा, डेवलपमेंट बहुत सा होगा, रास्ता, ट्रेन, लाइट, ये वो चलते निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इमीडिएटली जो आपको लाभ मिला है कि असामाजिक लोगों का जो डर था, आतंक था, और आप डरे हुए रहते थे कि यदि किसी गुंडे ने आपके ऊपर अत्याचार किया, आप जाएंगे किसके पास, जिनके पास जाएंगे आपको मालूम है कि पहले से वो गुंडा वहां बैठा हुआ है, तो डर से आदमी बोल नहीं पाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। दौलत का ऑफिस है, पूरे रेल पार्क में कोई भी गुंडा हो जो असामाजिक काम से जुड़ा हुआ हो, उसको उसका प्रतिवाद आप कर सकते हैं, और जब प्रतिवाद करेंगे तो आपके विधायक का पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार आपको मिलेगा, क्योंकि उनका भी वही सपना है। आसनसोल के बेटे हैं, रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई लिखाई किया है, उनका भी सपना है कि रामकृष्ण मिशन में पढ़ाई लिखाई करते हुए जो चीजें सिखाई जाती है, जिस तरह के समाज का सपना देखा जाता है, वो समाज बनाना उनका भी लक्ष्य है। और हम लोग चूंकि आसनसोल में रहते हैं, हम लोग उनके हर ऐसे कामों के साथ रहेंगे, यह वादा करते हुए अपनी बात का समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज 125वां जन्मदिन। किताब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है, आज जो बच्चे लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कभी लाया नहीं है।
किताब में कहीं लिखा नहीं है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसा एक व्यक्तित्व है, ऐसा एक आदमी है, ऐसा एक इंसान है, तो जिसके वजह से आज हम लोग ये भूखंड में है। आज बंगाल को जो जगह में हम लोग हैं, ये उनका देन है। और श्यामा प्रसाद जी अगर नहीं रहते हैं तो आज हम लोग बांग्लादेश में हो, क्योंकि 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर देश को भाग किया गया। आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान का दो हिस्सा, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। ये पूर्व पाकिस्तान जो है आज का बांग्लादेश है,